Hello and most welcome students to my YouTube channel JEE Math Guru, and this is the lecture number 7 of differentiation for MSTCT. लास्ट 6 लेक्चर तक हमने 72 important MCQ सॉल्व किए हैं and now it's time to solve the MCQ number 73 from this lecture. This MCQ number 73 is the question of homework of last lecture. तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQ number 73 of lecture 7 for differentiation of MSTCT. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So students, this is the MCQ question number 73 of differentiation for MSTCT. ये होमवर्क का क्वेश्चन है. अगर आपने सॉल्व किया है तो इसका आंसर आप अभी सॉल्यूशन देखने के बाद चेक कर सकते हैं. सो आई विल सॉल्व दिस question number 73 of differentiation for MSTCT. What I have given, I will read the question. In this question, if f is a differentiable function of x, if f is a differentiable function of x such that f of 1 equal to 0, f of 1 0 दिया है, f dash 1 given 3/5, and main important is this y equal to e raised to x into f of e to the power 2x. ऐसा मुझे फंक्शन दिया है and I have to find dy by dx at x equal to 0. So what I have given, I will write here 73 solution. So f is a differentiable function of x. I have given f of 1 equal to 0, f dash of 1. What is f dash of 1? F dash of 1 is given as 3/5, right? And the given function y equal to e to the power x, e to the power x into f of e to the power 2x. ऐसा मुझे फंक्शन दिया है, right? And I have to find derivative of y with respect to x dy by dx at x equal to 0. Now I have already given f of 1 equal to 0 and f dash of 1 equal to 3/5. I have to find dy by dx. Now differentiating this function with respect to x, I will find dy by dx. And then I have to find dy by dx at x equal to 0. So okay students, differentiating with respect to x, we have dy by dx is equal to, so this is a product function u into v. ऐसा फंक्शन है. This is first function, this is second function. दो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u into v, u into डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v into डेरिवेटिव ऑफ u. या प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, एफ ऑफ ई टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश ऑफ ई टू द पावर 2x कंपोजिट फंक्शन है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 2x होगा 2x, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x होगा 2. सो दिस इज फर्स्ट इंटू ये इतना लंबा इसका डेरिवेटिव है, एफ ऑफ ई टू द पावर e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव होगा एफ डैश ऑफ e टू द पावर 2x, फिर आएगा e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, e टू द पावर 2x, फिर आएगा इस पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2. सो दिस इज फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ e टू द पावर 2x, ये सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x. तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हुआ? e टू द पावर x. ओके, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आई थिंक e टू द पावर x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. सो टेकिंग e रेज़ टू x कॉमन, सो आई विल इन द ब्रैकेट आई विल हैव 2 into this e to the power 2x into this f dash of e to the power 2x प्लस ये e to the power x कॉमन है. तो अब मेरे पास टर्म बचेगी f of e to the power 2x. ओके, सो दिस इज dy by dx, but now I have to find dy by dx at x equal to 0. I have to find dy by dx at x equal to 0, यानी I have to replace x by 0. So here e to the power 0 into 2 into e to the power 0 into f dash of e to the power 0, x equal to 0 मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस f of e to the power 0 होगा. ओके, सो दिस विल बिकम e टू द पावर 0 कितना होता है? 1
ई टू द पावर 0 कितना होता है 1 इंटू 2 इज 2 प्लस एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ ई टू द पावर 0 इज 1, तो ये बनेगा एफ ऑफ 1। ओके, सो दिस इज 2 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 एच ई टू द पावर 0 कितना लिखना है मुझे 1 लिखने का है। ओके, सबको पता है एनी कांस्टेंट टू द पावर 0 हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो इसलिए अब मुझे इन वैल्यूज़ का यूज़ करने का है, ये तो मुझे क्वेश्चन में दिया ही है। सो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज़ हियर। सो दिस इज 2 एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 इज ऑलरेडी गिवन एज 3/5 प्लस अब ये एफ ऑफ 1, दिस एफ ऑफ 1, तो इस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो आंसर मिल गया मुझे 2 इंटू 3/5। सो दिस 2 इंटू 3/5 इज़ व्हाट 6/5, तो इसका आंसर है 6/5। 6/5 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 73 होमवर्क का क्वेश्चन है। ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है 6/5। तो ये था होमवर्क क्वेश्चन 73 ऑफ लास्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन फॉर MSTCT। नाउ we will start our regular MCQs of this lecture number 7 of differentiation. So this was 73, आप आंसर चेक कर सकते हैं। आपका आंसर भी अगर 6/5 है तो यू आर करेक्ट। एंड इसके बाद के जो MCQs आपके सामने दिखाई देंगे बोर्ड पे, तो प्लीज़ आप उसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं। सो दिस वाज 73। नाउ 74 हम देखेंगे। सी द क्वेश्चन नंबर 74। आई हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2। 74 आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन y साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2। सो let y equal to sin inverse of 3x minus x cube upon 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। प्रॉपर सब्सटीट्यूशन अगर हम यूज़ करेंगे तो इसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम प्रॉपर सब्सटीट्यूशन से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू डिफरेंशिएट। उन एक्सप्रेशंस में हमें किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला दिखाई देता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीआर स्टूडेंट्स, अगर मैं ब्रैकेट में ऐसी एडजस्टमेंट करता हूँ 3 इंटू x/2, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें फार्मूला दिखाई दे रहा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। एक्सप्रेशंस को अगर आप एक्सप्रेशन में अगर आपको फार्मूला दिखता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी समझ में आता है कि किस टर्म को क्या सब्स्टिट्यूट करने का है। सो 3x/2 3 इंटू x/2 माइनस x³/2 है, तो ये 1/2 इंटू x³ लिखा है मैंने, राइट। अब देखिए दिस विल बिकम साइन इनवर्स ऑफ 3x/2 3 sin थीटा। आप देखिए sin 3 थीटा का फार्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 3 sin थीटा तो मुझे मिल गया है, -4 लिख लेता हूँ। लेकिन मुझे ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे 1/2 x³ मुझे दिखना चाहिए। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो sin क्यूब थीटा के लिए मैं x/2 का होल क्यूब लिख लेता हूँ, और 4 इंटू x/2 का होल क्यूब यानी 1/2 x³ आएगा। सो x³ होगा और ये 1/2 का क्यूब होगा 1/8, 4 इंटू 1/8 होगा 1/2। तो इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से मैंने कर दी है। अब देखिए इसमें मुझे x/2 को मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट x/2, पुट दिस x/2 की जगह पे मैं लिखूँगा साइन थीटा, राइट। सो मेरा फंक्शन y बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, राइट। सो साइन इनवर्स ऑफ सबको पता है ट्रिपल एंगल फार्मूले, साइन ऑफ 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan ऑफ 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। फार्मूले लर्न होने चाहिए। सो दिस इज साइन ऑफ 3 थीटा एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा बनेगा
3 थीटा एंड अगेन आई हैव टू चेंज दिस थीटा, फिर से मुझे थीटा को x के फॉर्म में लिखने का है। तो ये मेरा सब्सटीट्यूशन था x/2 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा, थीटा लिख सकता हूँ मैं साइन इन्वर्स ऑफ व्हाट x/2, राइट। सो नाउ आई हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस 3 साइन इन्वर्स ऑफ x/2, यानी साइन इन्वर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 होता है 3 साइन इन्वर्स ऑफ x/2। अब देखिए y इक्वल टू दिस फंक्शन, अब मैं इसे इजीली डिफ्रेंशिएट करके dy/dx फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2। सो 3 कांस्टेंट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x/2 का स्क्वायर कितना होगा? x²/4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x/2? x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2। ओके, नाउ हियर दिस 3 इंटू, अब ये डिनोमिनेटर में होगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इंटू दिस 1/2, फिर से ये 2 कैंसिल। तो इस तरह से मुझे डेरिवेटिव मिल जाएगा 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2। प्रॉपर सब्सटीट्यूशन इज वेरी वेरी important. So 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस आंसर इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 74। तो इसका आंसर है लास्ट डी, आंसर इसका करेक्ट है। Now see the students, next important MCQ number 75 of differentiation. Next 75 MCQ number of differentiation is also very very important. तो वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व कीजिए। 75। So what is given in the 75? See this question. This question is also very very important. Here, if derivative of this function, derivative of tan x plus 2/3 into tan cube x plus 1/5 into tan x to the power 5 equal to sec x to the power n, तो मुझे n की वैल्यू पूछिए। यानी मुझे इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके सेक के फॉर्म में टर्म लाने की है और कंपैरिजन से मुझे फिर n की वैल्यू फाइंड आउट करने की है। तो लिख लेता हूँ व्हाट इज गिवन टू मी, डेरिवेटिव ऑफ tan x plus 2/3 into tan cube x plus 1/5 into tan x to the power 5, इसका डेरिवेटिव मैं पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। ओके, एंड दिस डेरिवेटिव इज गिवन टू बी sec x to the power n. आई हैव टू फाइंड n। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2/3 पावर 3, 1/5 पावर 5। ओके, सो सिंपल फॉर्मूले सबको मालूम है। डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x, 2/3 कांस्टेंट है। tan क्यूब x का डेरिवेटिव होगा 3 tan स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x, फिर से मिलेगा sec स्क्वायर x, राइट, प्लस दिस 1/5 कांस्टेंट tan x टू द पावर 5, तो उसका डेरिवेटिव होगा 5 इंटू tan x टू द पावर 4 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x। ओके, तो हर टर्म में मुझे sec स्क्वायर x दिखाई दे रहा है। हियर इज sec स्क्वायर x, हियर इज ऑल्सो sec स्क्वायर x, हियर इज ऑल्सो sec स्क्वायर x। सो आई विल टेक sec स्क्वायर x कॉमन फ्रॉम ऑल दिस टर्म्स। सो हियर इज 1, तो ये 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ बनेगा 2 tan स्क्वायर x, 3 कैंसिल, 2 tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x इज कॉमन, दिस 5 विल गेट कैंसल, sec स्क्वायर x कॉमन, एंड दिस इज tan x टू द पावर 4। ओके, बट हियर डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन इज गिवन एज sec x टू द पावर n, यानी मुझे पूरी टर्म सेक में कन्वर्ट करने की है। ऑलरेडी आई हैव दिस sec स्क्वायर x, सो हाउ आई कैन कन्वर्ट दिस? सो इफ यू ऑब्जर्व दिस टर्म 1 + 2 tan स्क्वायर x, 1 + 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x टू द पावर 4, इस टर्म को आप अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इसमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? 1 +
tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर करके देखिए, ए स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर होगा tan x टू द पावर 4. सो दिस होल ब्रैकेट इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, एंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ. दिस इज sec स्क्वायर एक्स, दिस इज sec स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का स्क्वायर यानी sec x का पावर कितना होगा 4, और ये होगा sec x टू द पावर 6, एंड दिस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन एज sec x टू द पावर n. तो क्लियरली n कितना मिलेगा मुझे 6. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज n इक्वल टू 6 एंड दिस वाज 75. तो 6 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है. सो दिस वाज 75. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी नेक्स्ट 76 क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड derivatives differentiation for MHTCET. Okay, so see the next question number 76. this is very simple question. आप easily इसको सॉल्व कर सकते हैं. वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, काफ़ी कम समय में काफ़ी कम टाइम में इसको सॉल्व करने में लगेगा. सो हियर इज़ वेरी सिंपल फंक्शन y इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा फंक्शन दिया है एंड आई हैव टू फाइंड dy बाई dx. काफ़ी सिंपल है. तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो आई थिंक इट इज़ बेटर टू टेक log y इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई इंटू लॉग ऑफ ई. तो लॉग ऑफ ई कितना होगा 1 होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. log y equal to log of e to the power 1 plus xy into log e is 1. Now differentiating with respect to x, so it is 1 by y dy by dx, derivative of log y, log of f of x 1 by f of x into f dash x. Okay, so 1 by y dy by dx, this is the derivative of log y. 1 का डेरिवेटिव 0, अब डिफ्रेंशिएट करने का है x इंटू वाई को, सो x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा u इंटू v, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा. सो फर्स्ट इज x, सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड dy बाई dx प्लस सेकंड फंक्शन इज y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1 होगा. तो अब dy बाई dx की टर्म कलेक्ट करेंगे, 1 बाई वाई माइनस एक्स इंटू dy बाई dx इक्वल टू y. सो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स वाई इंटू dy बाई dx अपॉन y, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर. So here is the answer to this question, dy by dx equal to y square upon 1 minus xy. So this is very simple question. Y square upon 1 minus xy is the answer to this question. Option B, option second is correct. Okay, तो इसमें कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हैं, लेकिन ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट सेलेक्टेड है. दिस वाज 76. Now we will solve the next 77, MCQ number 77 for MHTCET of differentiation, most important. See the 77. वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए. आप भी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आपकी तैयारी हुई है या नहीं, इससे आप चेक कर सकते हैं. ओके, सो सी द 77 फंक्शन है y इक्वल टू देखिए a प्लस बी tan x अपॉन a माइनस बी tan x, a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x. ओके, ऐसा फंक्शन है a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस a tan x, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ y. dy बाई dx मुझे फाइंड आउट करने का है इन टर्म्स ऑफ y. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट मैं करता हूँ. y इक्वल टू आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, क्योंकि मुझे इसमें tan ऑफ a प्लस बी दिखाई दे रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b. सो आई विल डिवाइड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b. सो आफ्टर डिवाइडिंग बाय b बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आई विल गेट द फंक्शन लाइक दिस. हियर a बाई b प्लस b गेट कैंसल, tan x बनेगा अपॉन b बाई b 1 होगा माइनस a बाई b इंटू tan x होगा. ओके,
नाउ सी स्टूडेंट्स, मेरा tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan की टर्म यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं कंसिडर करता हूँ a बाय बी को कुछ तो भी कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ tan कंसिडर करूँगा, tan अल्फ़ा कंसिडर करता हूँ। ओके, तो मेरा y कैसा दिखेगा, y इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan x, दिस इज़ माई y। ओके, a बाई बी कॉन्स्टेंट टर्म है तो मुझे कॉन्स्टेंट ही मैंने कंसिडर किया है tan अल्फ़ा इज़ अ कॉन्स्टेंट। नाउ इट इज़ क्लियरली tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b। सो tan ऑफ a प्लस b इज़ अल्फ़ा b प्लस x। ओके, तो ये जो मेरा फंक्शन है y a प्लस बी tan x अपॉन b माइनस tan x इज नाउ दिस tan ऑफ अल्फ़ा प्लस x वेयर tan अल्फ़ा इज a बाई बी। ओके, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ। सो dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स। अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। सो सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स। ओके, तो अब मुझे इसको y में लिख सकता हूँ 1 प्लस, देखिए मेरा tan ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स क्या है, व्हाट इज़ tan ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स क्या है, y है। सो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर। सो दिस इज़ द dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ y। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 77 of differentiation for MHTCET. Okay students, now see the next 78 of differentiation for MHTCET. So students, सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपके क्लियर हैं, आपको लर्न है और आपकी प्रैक्टिस है, तो आप भी इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आर वेरी वेरी important. So students, all these MCQs I have selected are very very important. This is lecture number 7. लास्ट लेक्चर तक आप सभी वीडियोस देखिए, MHTCET के डिफरेंशिएशन के सभी MCQs आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेंगे और मोस्ट इंटरेस्टिंग, और आपको सॉल्व करने में भी इसको काफ़ी मज़ा आएगा। सो सी स्टूडेंट्स, 78, this is the question number 78. Here is some logarithmic function is here. Derivative of log x to the base 10 is equal to log e to the base 10 upon f of x ऐसा दिया है और मुझे पूछा है f of y। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। here y इक्वल टू दिया है log x to the base 10 ऐसा फंक्शन है। log x to the base 10 log x to the base 10 और इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव में जो डिनोमिनेटर में f of x है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब f of x मिल जाएगा तो आई कैन ईजीली फाइंड दिस f of y, क्योंकि ओनली आई हैव टू रिप्लेस x बाय y। सो टू डिफ्रेंशिएट दिस, इसका मैं पहले बेस चेंज कर लेता हूँ। तो इस बेस को चेंज करता हूँ लॉगरिथम के रूल से, log x टू द बेस 10 अपॉन दिस log 10 लिख लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस 1 बाई log 10 कॉन्स्टेंट, ये 1 बाई log 10 कॉन्स्टेंट है। अब इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करने का है। सो log ऑफ f ऑफ x, इसका डेरिवेटिव, log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन f ऑफ x, यानी इसका रेसिप्रोकल log x टू द बेस 10 का रेसिप्रोकल होगा log 10 अपॉन log x। ओके, 1 अपॉन ऐसा होगा log ऑफ f ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव का 1 अपॉन f ऑफ x, log ऑफ x टू द बेस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x टू द बेस 10, तो उसमें 1 अपॉन log 10 कॉन्स्टेंट होगा
राइट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। सो स्टूडेंट्स दिस 1/log 10 इंटू ये बनेगा log x बाय log 10, तो log 10 ऊपर जाएगा, log 10 बाय log x इंटू 1/this x इंटू log 10, तो ये log 10 कैंसल। अब ये log 10 का बेस इस log का बेस कुछ भी नहीं यानी e है, तो उसको अगर मैं न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करता हूँ तो log e टू द बेस 10 होगा, अपॉन में होगा x log x। ये log 10 का बेस कुछ भी नहीं यानी e होता है, यहाँ पे e है बेस, और मैं इसे न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो ये बनेगा log ऑफ e टू द बेस 10 अपॉन दिस x इंटू log x। सो दिस इज f ऑफ x। तो यही मेरा राइट हैंड साइड है। डेरिवेटिव क्वेश्चन में देखिए log ऑफ e टू द बेस 10 अपॉन f ऑफ x। सो दिस इज माई f ऑफ x, दिस इज व्हाट f ऑफ x, ये f ऑफ x है, तो x log x, लेकिन मुझे पूछा है f ऑफ y, तो कितना सिंपल है, रिप्लेस x बाय y, सो f ऑफ y बनेगा y log y। तो यही इसका आंसर है y log y, एंड दिस y log y इज द करेक्ट आंसर विच इज इन द लास्ट ऑप्शन डी। मोस्ट सिंपल, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 78, नाउ सी द 79, क्वेश्चन नंबर 79 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MHTCT 79। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल द MCQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सभी MCQs काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नाउ वी विल सी दिस 79 क्या दिया है क्वेश्चन में, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, फिर से इनवर्स फंक्शन है, सब्सटीट्यूशन यूज़ करने का है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर x, एंड आई हैव टू फाइंड 1 प्लस e टू द पावर x इंटू y1 यानी dy बाई dx। ओके, तो पहले मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर x। ओके, तो इसे मैं डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन सब्सटीट्यूशन के लिए इस एक्सप्रेशन को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, ताकि मुझे किस टर्म को क्या सब्सटीट्यूट करने का है ये समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन ये होगा 1 अपॉन e टू द पावर x, इसका पावर पॉजिटिव कर लेता हूँ, माइनस e टू द पावर x। नाउ दिस बिकम्स वेरी सिंपल tan इनवर्स ऑफ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से एडजस्टमेंट करके हम फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 2 e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, इस तरह से फंक्शन मिलेगा। अब एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब मेरे सामने आता है तो मुझे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x दिखता है, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे मुझे सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, e टू द पावर x के लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्या, tan ऑफ थीटा। ओके, तो इस तरह से मेरा y बनेगा tan इनवर्स ऑफ। अब देखिए इसे मैं पढ़ता हूँ e रेस टू x की जगह पे मैं जब tan थीटा लिखता हूँ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। तो ये बन गया tan ऑफ 2 थीटा, एंड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 थीटा होगा 2 थीटा, और 2 एज इट इज़, और दिस थीटा यहाँ से थीटा मुझे फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा। tan थीटा अगर e रेस टू x है तो थीटा होगा tan इनवर्स ऑफ थीटा, क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ e रेस टू x। ओके, अब देखिए मैं इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। सो माय y इज़ नाउ दिस। ओके, नाउ आई विल डिफरेंशिएट। सो dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है इसमें, और tan इनवर्स x का tan इनवर्स f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x होल स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर यानी e टू द पावर x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, फिर से e रेस टू x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा e रेस टू x। सो दिस विल बी 1 प्लस e रेस टू x का स्क्वायर यानी e टू द पावर 2x
एंड दिस dy बाई डी एक्स, दिस dy बाई डी एक्स, इसका नोटेशन क्या है, y1 और बचा क्या है, दिस 2 इंटू ई रेस टू एक्स, 2 इंटू समथिंग इज रॉन्ग हियर, 2 इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू 2 इंटू ई टू द पावर एक्स। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 2 इंटू ई टू द पावर 2x कहाँ से आ गया है, ई टू द पावर x की जगह पे हमने लिखा है tan थीटा, ओके, रेस टू एक्स इक्वल टू tan थीटा, सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर and into derivative of e raised to x is e raised to x, so 2 into e to the power x is correct answer to this question and this is in the first option, पहला ऑप्शन करेक्ट है A। okay, now see the question number 80 को हम देखेंगे, dy by dx, once again I think it is better to check 2 theta is tan inverse of e raised to x, 1/1 plus e raised to x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is e raised to x, तो 2 इंटू e raised to x करेक्ट है, सो दिस वाज 79। नाउ सी 80, क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MSTCT, क्वेश्चन नंबर 80 हम देखेंगे। दिस इज ऑल्सो नाइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 79 की तरह ही हमें सब्सटीट्यूशन करने का है और हमें फाइंड आउट करने का है एफ डैश ऑफ वन मुझे फाइंड आउट करने का है। सो हियर एफ ऑफ एक्स यानी वाई, एफ ऑफ एक्स यानी वाई, कॉट इन्वर्स, तो एफ ऑफ एक्स ही लिख लेते हैं क्योंकि मुझे एफ डैश ऑफ वन फाइंड आउट करने का है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स क्या दिया है, एक्स टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो वहीं से tan में कन्वर्ट करता हूँ क्योंकि tan इन्वर्स में ये इजी फार्मूला अप्लाई होगा। सो ये बनेगा 2 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स इज tan इन्वर्स ऑफ 1/x यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, सो 2 अपॉन एक्स टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स होगा। ओके, सो नाउ दिस इज tan इन्वर्स ऑफ 2 अपॉन, इसको पावर पॉजिटिव कर लेता हूँ लास्ट के क्वेश्चन की तरह, तो ये बनेगा x टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे होगा x टू द पावर x। तो tan इन्वर्स, अब इसमें tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लाने के लिए यहाँ से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो टेकिंग माइनस कॉमन, तो tan इन्वर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस बार ही ले लेता हूँ। सो माइनस tan इन्वर्स ऑफ 2 एक्स टू द पावर x को मैं लिख लेता हूँ tan थीटा। ओके, तो ये बनेगा 2 tan थीटा अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है वो बाहर आ गया है, सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो इट इज़ माइनस tan इन्वर्स ऑफ दिस इज tan ऑफ 2 थीटा, दिस इज tan ऑफ 2 थीटा, तो ये बनेगा माइनस 2 थीटा बनेगा, ये माइनस 2 थीटा, थीटा क्या होगा tan इन्वर्स ऑफ x टू द पावर x। तो देखिए ये फंक्शन इतना छोटा हो गया, अब मैं इसे इजीली डिफरेंशिएट करता हूँ। दिस इज एफ ऑफ एक्स, नाउ आई हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स, अब मुझे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने का है। सो सीआर एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज कॉन्स्टेंट अपॉन tan इन्वर्स x टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी x टू द पावर x का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर x टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप फार्मूला ध्यान में रखिए, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। अगर आप इसे लॉगरिथम से सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला ही आपको लर्न करने का है। काफ़ी जगह पे आपको एक फ़ायदेमंद होगा, x टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ 1, आई हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ 1। ओके, तो ये है -2 अपॉन 1 प्लस 1 टू द पावर 1 का स्क्वायर 1
ए बी एक्स टू द पावर एक्स यानी 1 टू द पावर 1 1 होगा, 1 प्लस लॉग 1 एक्स की जगह पे 1 रखने का है तो लॉग 1 कितना होगा, 0 होगा। सो दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, 2 टू गेट कैंसिल और ये 1, तो कितना आंसर मिलेगा मुझे, -1। सो -1 इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विच इज़ इन द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट टू दिस 80, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर का क्वेश्चन है। नाउ सी द 81, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 81। थोड़ा इसका सॉल्यूशन बड़ा है लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 81, सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 81, x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ a अपॉन x माइनस वाई, तो dy बाई dx मुझे फाइंड आउट करने का है 81। तो मैं इस फंक्शन को नोट कर लेता हूँ, 81 x अपॉन x माइनस वाई, x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ a अपॉन x माइनस वाई। ओके, तो मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करने का है। अब मैं इसे कुछ यहाँ पे राइट हैंड साइड में लॉग के रूल यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। लॉग ऑफ m बाई n इज़ लॉग m माइनस लॉग n, तो फिर सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसे तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो लॉग में ही है। x अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लॉग ऑफ m बाई n लॉग a माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई, लॉग ऑफ m बाई n लॉग m माइनस लॉग n। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्टली। u बाई वी यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ होगा u बाई वी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई, u बाई वी स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। सो x माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस dy बाई dx। ओके, अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो लॉग ए पूरा कांस्टेंट होगा, उसका डेरिवेटिव 0। ये माइनस साइन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई इज 1 माइनस dy बाई dx। ओके, तो यहाँ का ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई और यहाँ पर एक x माइनस वाई मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। एक x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कैंसिल होगा। आप सीयर इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस x dy बाई dx। ओके, और ये x माइनस वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू एक्स माइनस वाई होगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। ओके, इंटू दिस 1 माइनस dy बाई dx। नहीं तो एक काम करते हैं, x माइनस माइनस ऑफ x माइनस वाई, ओके, इंटू 1 माइनस dy बाई dx। तो थोड़ा इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। अब इसकी राइट हैंड साइड देखिए, माइनस ऑफ माइनस तो ये होगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस वाई इंटू dy बाई dx। ओके, सो दिस प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ पे कैंसिल होगा। तो अब मेरे पास क्या टर्म्स बचे हैं, ये y प्लस वाई 2y होगा, तो ये बनेगा x माइनस एक्स प्लस वाई। ओके, तो x प्लस 2y, x प्लस 2y होगा। देखिए माइनस एक्स और ये माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, ये प्लस वाई और ये सॉरी माइनस वाई एक्स माइनस 2y होगा। राइट, इस तरह से गलती हो जाती है। माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ट्रांसफ़र किया है x माइनस 2y। अब ये dy बाई dx इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, सो x माइनस वाई और ये माइनस एक्स dy बाई dx इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। ओके, x माइनस वाई माइनस एक्स dy बाई dx। तो क्या बचता है यहाँ पे देखिए, x माइनस 2y
और ये माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो आंसर मिल गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो माइनस साइन को हटा देते हैं, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स अपॉन वाई, 2y माइनस एक्स अपॉन वाई, इस तरह का आंसर है 2y माइनस एक्स अपॉन वाई। राइट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन में ये ऐसा आंसर है। सो सी इज़ द करेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 81। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 81। ओके, नाउ सीयर 82 हम देखेंगे। 82 ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MHTCT। आप भी इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर माय सॉल्यूशन यू कैन चेक द आंसर। सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 82 हम सॉल्व करेंगे। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 82। इसमें दिया है रूट ऑफ एक्स बाय वाई प्लस रूट ऑफ वाई बाय एक्स इक्वल टू 1। आई हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स इज एक्स, रूट ऑफ वाई इंटू रूट ऑफ वाई इज वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर ही कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस 2xy मिडल टर्म 2xy माइनस एक्स वाई होगा। सिंपल फंक्शन बन गया है। अब मैं इसे पार्शली डिफरेंशिएट करता हूँ। पार्शियल डिफरेंस इम्प्लिसिट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। लास्ट काफ़ी लेक्चर्स में मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपके सॉल्व करके दिए हैं। सो दिस इज़ बेटर टू यूज़ पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन। डिफरेंशिएट दिस एफ ऑफ एक्स वाई, इस एफ ऑफ एक्स वाई को डिफरेंशिएट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सिंपल है। अब x कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो x कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y है तो 1 हो जाएगा, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 2y। सो माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y एकदम करेक्ट फिट आंसर बेटा है। ऑप्शन सी थर्ड इज करेक्ट। तो इस तरह के मेथड्स यूज़ करके हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज 82। नाउ सी 83 नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 83 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 83 सेलेक्टेड क्वेश्चन से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। सो हियर इज द फंक्शन साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस cos square ny equal to a square. Okay, I have to find dy by dx. Sin square of mx plus cos square of ny equal to a square. इस तरह का ये फंक्शन है, sin square of mx plus cos square of ny equal to a square। तो इससे डिफ्रेंशिएट करने का है, तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 ही लिख देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 डायरेक्टली ही डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। माइनस साइन डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा 2 साइन एम एक्स, 2 साइन एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एम एक्स होगा कॉस एम एक्स, कॉस ऑफ एम एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स होगा यम, कॉस स्क्वायर एन वाई का डेरिवेटिव वाई कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीपिंग वाई कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखने का है। वाई कांस्टेंट तो एन वाई भी कांस्टेंट, तो पूरी कॉस स्क्वायर एन वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये तो प्योरली कांस्टेंट है, उसका भी डेरिवेटिव 0 होगा अपॉन में। अब फिर से इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का है विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो एक्स कांस्टेंट यानी एम एक्स कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा 0। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, कॉस स्क्वायर एन वाई का डेरिवेटिव 2 कॉस ऑफ एन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एन वाई क्या होगा
कॉस एन वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एन वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एन वाई क्या होगा एन, और फिर से ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो इस तरह से पार्शली डिफ्रेंशिएट किया है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो सिंपल है, माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये यम कांस्टेंट पहले लिख लेते हूँ। अब देखिए ये 2 साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स, तो ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा क्या है, एम एक्स अपॉन सेम यहाँ पे होगा। अब ये यन कांस्टेंट लिख लेता हूँ। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन ऑफ 2 थीटा क्या है यहाँ पे एन वाई, थीटा क्या है यहाँ पे एन वाई। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स मिल गया। यम साइन ऑफ 2 एम एक्स, एम साइन ऑफ 2 एम एक्स अपॉन एन साइन ऑफ 2 एन वाई। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस के प्रॉब्लम में इस मेथड को अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो रेगुलर मेथड से काफ़ी कम टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। दिस वाज 83। नाउ हियर इज 84। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का 84। और हमारे हर लेक्चर में होता है आखिरी का क्वेश्चंस होता है 13 नंबर का जो होता है, 13वां क्वेश्चन जो होता है होमवर्क का क्वेश्चन होता है, वो भी आपको मिलेगा। सो दिस वाज 84। अब हम सॉल्व करेंगे 84 और क्वेश्चन नंबर 85 होगा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। सो हियर इज द 84। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, ओके। एंड आई हैव टू फाइंड y डैश, आई हैव टू फाइंड y डैश यानी dy बाई डी एक्स। सिंपल इसका डेरिवेटिव पूछा है। अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आंसर मिलेगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करते हैं, फंक्शन को छोटा करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको इजीली डेरिवेटिव इसका मिल सकता है। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से पहले इसकी एडजस्टमेंट देखिए, 2 टेन स्क्वायर एक्स, ये 2 टेन 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इस 2 टेन स्क्वायर एक्स को लिखता हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड दिस y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी, प्लस दिस टर्म 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये लास्ट में अपना फिर से बचा है टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इस टर्म को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या एडजस्टमेंट किया है मैंने, 2 टेन स्क्वायर एक्स को लिखा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, दिस टर्म एज इट इज, दिस टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज। इज दिस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। सो दिस y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आपको a सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, श्योरली ये है सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट माई y इज सिंपली सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सो दिस y इज दिस, इसका मतलब ये है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स इज अगेन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, राइट, एंड दिस सेक एक्स एज इट इज, और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दिस सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज अगेन व्हाट, y। तो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, सो दिस बिकम्स y इंटू सेक एक्स, दिस बिकम्स व्हाट, y इंटू सेक एक्स। सो दिस इज dy बाई डी एक्स विच इज़ व्हाट, y डैश। सो y डैश कितना मिला है मेरा, y सेक एक्स। तो इस तरह के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए, डेरिवेटिव के काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड MCQs हैं। एंड नाउ हियर इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ए आपका लास्ट क्वेश्चन है 85 होमवर्क के लिए आपको सॉल्व करने का है।
और इसका करेक्ट आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करने का है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ सी ऑल दीज लेक्चर्स ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर MST सीरियसली आप देखिए, और हर लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होमवर्क का है, उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर श्योरली सेंड कीजिए। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में हम मिलेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, बाय।